يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگوں، آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع توبہ اور استغفار۔ معزز سامعین، رمضان کا مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ بھی ہے، اور بنی نوع انسان سے جڑا ہوا ہر فرد خطا کار ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، لیکن خطا کاروں میں غلطی جن سے سرزد ہوتی ہے ان میں بہتر وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، وخیر الخطائین التوابون۔ چنانچہ ہمارے لیے ایک سنہرا موقع ہے، رمضان نیکیوں کا موسم بہار، کہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کریں۔ معزز سامعین، استغفار کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان اور دل سے اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ بندہ اپنی زبان اور دل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مغفرت طلب کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کو اگر معاف کرنا ہمیں پسند ہے تو 3 شروط ہیں توبہ کے قبول ہونے کے، تو ان 3 شروط کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ سب سے پہلی شرط، ہمیں جس گناہ سے بھی توبہ کرنا ہے اس گناہ کو پورے طریقے سے چھوڑ دینا ہوگا۔ دوسری شرط، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہوگی۔ تیسری شرط، یہ عزم مصمم ہمیں کر لینا چاہیے کہ مستقبل میں کبھی بھی میں پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا۔ یہ 3 شرط ہم اپنا کر توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ معزز سامعین، استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ مختصر انداز میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول قبل موتہ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں، موت کے قریب، آپ یہ ورد زیادہ کیا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ اللہ کی قسم، یقیناً میں دن و رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں 70 بار سے بڑھ کر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے یہ کہا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیم واتوب الیہ، یہ استغفار جس نے پڑھا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار کا یہ ورد جس نے کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غفرت ذنوبہ وان کان قد فر، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ کہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ میدان جنگ سے، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا بہت بڑا جرم ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یبن آدم، اے آدم کی اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک
जब तक तुम मुझसे दुआ करते रहो और मुझसे अपनी उम्मीद बांधे रखो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करते रहूँगा, तुम्हारे गुनाह कितने ही क्यों ना हो, तुम्हारे गुनाह कितने ही क्यों ना। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने गफ़ूर हैं, कितने रहीम हैं, कैसी जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला दावत हमें दे रहे हैं और कैसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या ये पैगाम है। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, न अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या बना आदम, ऐ आदम की औलाद, अगर तेरे गुनाह आसमान को भी छू जाएँ, अगर तेरे गुनाह आसमान को भी छू जाएँ, उसके बाद भी अगर तू मुझसे इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, तो मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, इसका मुझे कोई फ़िक्र नहीं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या इब्न आदम, ऐ आदम की औलाद, अगर तुम ज़मीन भर गुनाहों के साथ मेरे हुजूर आओ, लेकिन इस हालत में कि मेरे साथ किसी को भी तुमने शरीक ना ठहराया हो, तो उतनी ही मग़फ़िरत से मैं तुम्हारा इस्तक़बाल करूँगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मग़फ़िरत पर क़ुरबान जाए कि कितने प्यारे अंदाज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दावत दे रहे हैं तौबा इस्तिग़फ़ार की तरफ, तो हमें तौबा इस्तिग़फ़ार की तरफ जल्दी करना चाहिए। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, तमाम मसाइल, हमारे ज़िंदगी के तमाम मसाइल का वाहिद हल अगर आप चाहते हैं तो वो तौबा इस्तिग़फ़ार है। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर माल की कमी है उसका इलाज तौबा इस्तिग़फ़ार है, औलाद की कमी है उसका इलाज तौबा इस्तिग़फ़ार है, पानी की कमी है उसका इलाज तौबा इस्तिग़फ़ार है, अगर फसल सही नहीं हो रही है उसका इलाज तौबा इस्तिग़फ़ार है, तिजारत सही तरीक़े से नहीं हो रही है उसका इलाज तौबा इस्तिग़फ़ार है। यानी तमाम मसाइल का हल तौबा इस्तिग़फ़ार है। चुनांचे नूह अलैहिस्सलाम के कौल आप जो है घाटी बांध कर रख रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला माल भी अता करेंगे, औलाद भी अता करेंगे, पानी भी बरसाएंगे, बागीचे भी अता करेंगे, सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करेंगे। तौबा इस्तिग़फ़ार अगर हमने किया, तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह का वक़ार तुम्हारे दिलों में नहीं है, अल्लाह की अज़मत तुम्हारे दिलों में नहीं है, हर चीज़ की कीमत तुम्हें समझ में आ गई, लेकिन अल्लाह की अज़मत को तुम क्यों समझ नहीं रहे हो? यह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे सवाल कर रहे हैं। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, तौबा इस्तिग़फ़ार के तय हमारे जो सलफ़ ने जो अक़वाल कहे हैं उनको भी आपके हवाले करता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल अजबु मिम्मन यहलिकु व माअहुन नजात। अजीब बात तो ये है कि नजात पाने के सारे वसाइल उसके पास होते हुए एक आदमी हिलाक हो जा रहा है। तो वहाँ के जो साथी थे उन्होंने कहा कि वो क्या है, वो नजात क्या है? तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल इस्तिग़फ़ार। वो क्या है? अल इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार के गुनाह इंसान को बर्बाद कर देते हैं और नजात का ज़रिया क्या है? इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार को रख कर भी कोई हिलाक हो रहा है तो ये अजीब सी बात ही है। और इसी तरीक़े से क़तादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल क़ुरआनु यदुल्लुकुम अला दाइकुम व दवाइकुम। क़ुरआन तुम्हारी बीमारी की भी तशख़ीस करता है और तुम्हें दवा भी बताता है। क़ुरआन तुम्हारी बीमारी की भी तशख़ीस करता है और तुम्हें उसकी दवा भी बताता है। अम्मा दाउकुम, तुम्हारी बीमारी ये है कि गुनाह, अज़्ज़ुनूब, तुम्हारी बीमारी क्या है? अज़्ज़ुनूब, गुनाह तुम्हारी बीमारी है और इसका इलाज क्या है, दवा क्या है? व अम्मा दवाउकुम अल इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार इसका दवा है। राबिया अदविया कहती हैं कि आज जो इस्तिग़फ़ार हम कर रहे हैं, खुद ये इस्तिग़फ़ार, कई इस्तिग़फ़ार का जो है की ज़रूरत इसको है। इसकी वजह ये है कि दिल से हम इस्तिग़फ़ार नहीं, ज़बानी इस्तिग़फ़ार हो गया है। अस्तग़फ़िरुल्लाह कर रहे हैं, अतूबु इलैह कर रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह कर रहा है फिर गाली दे रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह कर रहा है फिर क्या है, धोखा दे रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़बान पर है लेकिन अमली ज़िंदगी में उसका कोई असर नज़र नहीं रहा है, दिल में जो है उसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने शुरू में कहा कि मग़फ़िरत तलब करना किससे? ज़बान और दिल से एक सा होना चाहिए। और इसी तरीके से उलमा ने फरमाया कि बंदा और नेमत के दरमियान गुनाह होता है कि नेमत उसको मिले ना मिले, आड़ क्या है? आड़ गुनाह है।
चुनाचे इस आड़ को हटाने वाली चीज़ क्या है? इस्तिग़फ़ार है। चुनाचे माज़ सामीन इसको आप ज़हन नशीन कर लें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक उम्र दराज शख्स आते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैं बूढ़ा हूँ लेकिन गुनाहों में मुलव्वस हूँ। मैं बूढ़ा हूँ लेकिन गुनाहों में मैं मुलव्वस हूँ, लेकिन ये मैं अल्लाह पर जुर्अत के साथ गुनाह नहीं कर रहा हूँ और इस नीयत से भी नहीं कर रहा हूँ कि अल्लाह की पकड़ से मैं भाग जाऊँगा। मेरी कमज़ोरी है, मैं गुनाहों में मुलव्वस हूँ। तो उस वक्त अल्लाह सुब्हाना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुज़ुर्ग से ख़िताब करते हुए फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। यानी यहाँ इस्तिग़फ़ार की तरफ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तवज्जुह दिलाई। और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामीन, गार वाले क़िस्से में आपको मालूम है एक शख्स जो अपनी चचाज़ाद बहन को जो है उसने वरगलाने की कोशिश की थी और माली जो है लालच देकर बुरे काम पर उसने उकसा लिया था। बिल आखिर जब वो लड़की कहती है कि अल्लाह से डरो, वो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करके अपने गुनाह से तौबा करके वहाँ से निकल जाता है। जब अल्लाह से उसी तौबा का हवाला देकर दुआ करता है तो अल्लाह उसकी मुसीबत को हटा देते हैं। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये भी हमें ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। अब मोहतरम सामीन, एक मिसाल के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, अगरचे कि कई सारी चीज़ें, वो ये कि अगर इस लम्हा आपसे कहा जाए, इस लम्हा आपसे कहा जाए 1 करोड़ दीनार 1 महीने की मसाफत पे आपको मिलेंगे, आपको शर्त क्या है? 1 महीने की मसाफत तय करनी होगी। 1 महीने की मसाफत के बाद 1 करोड़ दीनार आपको मिलेंगे। क्या आप तैयार होंगे कि नहीं? हकीकत में अगर बात है तो तैयार होंगे ना, हम में से हर एक आदमी तैयार होगा। लेकिन बाद में शर्त रखी जा रही है कि वो दीनार को पाने के लिए जिस रास्ते से तुम्हें जाना है उस रास्ते में भयानक शेर है, भयानक चीते हैं, दरिंदे हैं और जहरीले सांप हैं। उन सारे सांपों को, उन सारे दरिंदों को पार करते हुए, उनसे बचते हुए उस करोड़ दीनार की तरफ तुम्हें बढ़ना है। आप क्या सब तैयार होंगे? हाँ, वही तैयार होगा जो हथेली पर जान लेकर निकलेगा, जो हथेली पर जान लेकर निकलेगा। क्या मुनासिबत है इससे और रमज़ान के महीने से तौबा इस्तिग़फ़ार से? मुअज़्ज़ज़ सामीन, करोड़ दीनार क्या है? कुछ भी नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक तीर रखने की उतनी जगह मिल जाए तो दुनिया व माफिया से बेहतर है। तो जन्नत सबसे कीमती चीज़ है, सबसे कीमती चीज़ है और 1 महीने की दूरी पर है। 1 महीने की दूरी पर जन्नत है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं। कह रहे हैं कि जो चाहे मेरी जन्नत में दाखिल हो सकता है, मेरे बंदों में शुमार हो सकता है, नफ्स मुतमइन्ना का मालिक बन सकता है। यह सब के लिए चांस है और शर्त है, रास्ते में ख़तरनाक किस्म के शैतान हैं, जिन हैं, तो तुम्हारे ईमान को, तुम्हारे अमल को, तुम्हारे इखलास को वो उचक लेंगे। ये ख़तरा है। तो डर लगा रहता है हमें, हम हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि याद रखिए शैतान को हम हरा नहीं सकते, शैतान को हम हरा नहीं सकते, इसलिए कि शैतान हमें देखता है, हम शैतान को नहीं देखते। इसलिए वो दाएं से भी आता है, बाएं से भी आता है, आगे से भी आता है, पीछे से भी आता है, नीचे से भी आता है। अगर हमें बचना है तो ऊपर वाले की तरफ रुजू करना है, उसकी तरफ अगर हम रुजू कर लिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान से हमें बचाएंगे। चुनाचे वइदा क़रअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और जब भी दिल में कोई वसवसा हो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बात समझ में आ रही कि नहीं? चुनाचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना सुनहरा जो हम मौका दे रहे हैं, कितना गोल्डन चांस दे रहे हैं। अल्लाह बता रहे हैं बेहिसाब नेमतों की जो जन्नत है उसका दरवाज़ा भी मैं खोल दिया हूँ और सारे शयातीन और जिन को मैं 1 महीने के लिए बंद कर दिया, 1 महीने के लिए मैं बंद कर दिया हूँ। पर इसके बावजूद अगर हम जन्नत को हासिल नहीं कर सके, इसके बावजूद मग़फ़िरत हमने नहीं पाई, अपने गुनाहों की बख्शिश हमने नहीं करवाई, तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा? चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो 3 दुआएं की थी उसमें से एक दुआ ये है कि बदनसीब है वो आदमी, अल्लाह की लानत है उस आदमी पर जो रमज़ान का महीना भी पाले और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत भी
ना करवा सके। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये सुनहरा मौका है हमारे लिए, इसको गनीमत जानते हुए तौबा इस्तिग़फ़ार की तरफ आप लब के, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मग़फ़िरत की तरफ आप लब के, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के जो है गुनाहों को, ख़ताओं का अल्लाह माफ़ फरमाएंगे और अपनी बेहतरीन जन्नतों में हमारा दाखिला फरमाएंगे। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे होने वाली लग़ज़िशों को माफ़ फरमाए और हमें अपने जन्नतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला दाखिल फरमाए और उन जन्नतों में जन्नतुल फ़िरदौसिल आला में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। व ज़ाकुमुल्लाह खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक छोटा सा सवाल है, हाँ एक मिनट प्लीज़, एक छोटा सा सवाल है। अब तौबा इस्तिग़फ़ार के ताल्लुक़ से हम लोग बात कर रहे थे, तौबा इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत कौन बताएंगे? आप इस तौबा इस्तिग़फ़ार करने की फ़जीलत कौन बताएंगे? आप बोलते चलिए। तौबा इस्तिग़फ़ार करने से पूरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अच्छा, और बागीचे मिलेंगे और नहरें मिलेंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाह फ़िक बारकल्लाह फ़िक। लीजिए वालिद साहब के हाथ लीजिए, चलो उठो बेटा। ज़ाकल्लाह खैर। कभी सवाल किया जाए तो आप जवाब देने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि खबर